اٹھائیے گا, اپنے ہاتھوں کو لہرائیے گا. روح القدس جو آلریڈی ہمارے درمیان موجود ہے, آئیے میرے عزیزو تالیاں بجاتے ہوئے ہم اور زیادہ ویلکم کریں گے, اور آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پادری اندریاس بوٹا صاحب کو خدا کے کلام کے لیے دعوت دیں گے. سب تشریف رکھیے گا, بیٹھ جائیے گا, وقت ہے کہ میں اور آپ خدا کے کلام کو سنیں. مسیح خداوند کے خوبصورت نام میں آپ تمام کلیسیا کو اور جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ ہیں, آئزک ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے, ایٹرنل لائف ٹی وی کے وسیلہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے ڈھیروں سلام قبول ہو, آمین. میں اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر فضل کے وسیلہ سے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے گھر گھر انجیل کے پیغام کو پھیلایا, اور میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہوں جن کو کوئی نہیں جانتا, آج آئزک ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے دنیا انہیں جانتی ہے. سب بولے ہیں آمین. آج میں خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر فضل کا, خدا کی عظیم خادمہ پاسٹر ندا کا, اور خدا کے عظیم خادم عظیم مومسو پاسٹر شوکت فضل, پاسٹر منور فضل اور پوری فضل فیملی کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اس پاکستان کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ آ کر خداوند کے زندگی بخش کلام کی منادی کر سکوں. آمین. آج میرا مضمون ہوگا خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. کیا مضمون ہوگا میرا؟ سب میرا ساتھ دیجئے گا. مضمون ہے میرا خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے, گواہیاں سن رہے تھے, آپ نے دیکھا بے شمار لوگوں نے مختلف ڈیزیز سے, مختلف روگوں سے, مختلف امراض سے, مختلف مشکلات سے انہوں نے شفا پائی. اور یہ گواہیاں جو ہیں آئزک ٹی وی کا نہیں, ایٹرنل لائف کا نہیں, بلکہ خدا کے پیارے بیٹے, خدا کے بیٹے یسوع کی قدرت اور اس کی جلال کو ظاہر کرتی ہے, جو اپنے خادموں کے ذریعے آج بھی خدا کے لوگوں میں اور ان کی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب, پہلا باب 7ویں آیت سے لے کر میں 12ویں آیت تک آج خداوند کا زندگی بخش کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ضرور سنیے گا. لکھا ہوا ہے, اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئی, اور وہ ملک ان سے بھر گیا. تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا, اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں, سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں, تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں. اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں. سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتوم اور ریمسس بنائے. اور بڑی خوبصورت آخری آیت کلیسیا آپ کے لیے ہے, ٹیلی ویژن دیکھنے والے آپ کے لیے ہے, ضرور سنیے گا. بڑی خوبصورت آیت, خروج پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت آخری آیت ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے, پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے. کیا ہوا؟ وہ اتنا ہی زیادہ جتنا ان کو زیادہ ستایا گیا, کلام تصدیق کرتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے. کلام مقدس کے اندر جب ہم مقدس یوسف کی زندگی پر غور کرتے ہیں
تو کلام بیان کرتا ہے اس کے باپ نے اس کو گھر سے اپنے بھائیوں کی خبر لینے کے لیے بھیجا. یہ اپنے گھر سے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق اپنے بھائیوں کی خبر گیری کے لیے نکلا. اور میں کلام کے جب ان آیات پر غور کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا میں نے اس میں سے نتیجہ نکالا. ایک بات بڑی غور طلب میں نے دیکھی کہ جب خدا نے ابراہیم کو بڑھانا تھا تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ بات کی اور اسے کہا ابراہیم تو اپنے ناطے داروں میں سے, تو اپنے رشتہ داروں میں سے, تو اپنے باپ کے گھر میں سے نکل اور چل, میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, میں تمہیں ایک بڑا آدمی بناؤں گا, میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا. تو میں دیکھ رہا تھا جتنے بھی لوگ کلام مقدس کے اندر, جتنی بھی عظیم شخصیات پیدا ہوئی, جتنی بھی مشہور شخصیات آئیں, کلام کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے پہلے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنے کا حکم کیا. اور یہاں پر بھی ابراہیم نے جب خدا سے بات کی تو خدا کہتا ہے ابراہیم اپنے باپ کے گھر سے چل, اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے اور میں تجھے بڑا آدمی بناؤں گا. اور یہاں پر جب میں مقدس یوسف کی زندگی پر غور کر رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا اس کو بھی باپ نے گھر سے نکالا اپنے بھائیوں کی کیا کرنے کے لیے, خبرگیری کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ خبرگیری کرنے کے لیے. اور کلام بیان کرتا ہے آج میں دیکھتا ہوں لوگ برکت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں, ڈیلی بائبل سٹڈیز بھی کرتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ اتنی ہی قوت, اتنی ہی زیادہ تعداد کے ساتھ حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہے. یہاں پر کلام بیان کرتا ہے یوسف کو اس کے باپ نے اپنے بھائیوں کی خبرگیری کے لیے جب بھیجا تو اس کے بھائیوں نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میرے پولے کو تمام 11 پولوں نے سجدہ کیا ہے, یہ تو وہی نوجوان لڑکا ہے جو کہتا تھا سورج, چاند اور ستاروں نے مجھے سجدہ کیا ہے. بھائی حسد سے بھر گئے, نفرت سے بھر گئے, غصے کی آگ ان کے اندر بھڑکی. اور کلام بیان کرتا ہے خدا یوسف کو بڑھانا چاہتا تھا, خدا یوسف کو ترقی دینا چاہتا تھا, خدا یوسف کو ایک بڑا عہدہ دینا چاہتا تھا, خدا یوسف کو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اور کلام بیان کرتا ہے جب بھی کوئی آپ ترقی یافتہ بندہ دیکھیں تو آپ اس کی زندگی پہ غور کریں, بڑی مشکلیں, بڑی مصیبتیں, بڑی بڑے تکالیف اس نے جیلی ہوں گی. اور یہاں پر کلام بیان کرتا ہے یوسف گھر سے بھائیوں کی خبرگیری کے لیے جب گیا تو بھائیوں کے اندر حسد بھر گیا. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو ہم پر کہتا ہے حکومت جتائے گا, جس کے آگے ہم سجدہ کریں گے. بھائیوں نے یوسف کو پکڑا اور حسد کے مارے سب سے پہلے اسے مارا, پیٹا, اس پہ تشدد کیا. اور کلام بیان کرتا ہے اس کو گھڑے کے اندر ڈال دیا. اور لکھا ہوا ہے بھائیوں کو ترس آیا. روبن نے کہا نہیں, کلام بیان کرتا ہے روبن نے, اس کے اندر خدا کا خوف آیا, اس نے کہا نہیں یہ پھر بھی ہمارا بھائی ہے. تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روبن چاہتا تھا کہ وہ یوسف کو بچائے اور کسی طرح بھی اس کو واپس اپنے باپ کے گھر, اپنے گھر بھیج دے. لیکن کلام بیان کرتا ہے یہ گھر سے بھائیوں کی خبرگیری لینے والا شخص بھائیوں کے ہاتھوں اس نے اذیت سہی, تشدد سہا, اور بھائیوں نے اس کو تشدد کر کے گھڑے کے اندر ڈال دیا. اور کلام کہتا ہے کہ بھائیوں نے ایک ارادہ کیا اپنے بھائی کو چند سکوں, چند معمولی رقم 20 روپوں کی خاطر اسماعیلی قافلے کے ہاتھ, مدیانی سوداگروں کے ہاتھ اپنے بھائی کو فروخت کر دیا. یہ ننھا سا نوجوان جو نہیں جانتا تھا
जिसको अपने घर में सिर्फ सोना, खाना, पीना और शरारतें करना और अपने घर में फिरना, चलना फिरना आता था, ये नहीं जानता था कि ये एक बड़ी मंजिल का मुसाफिर बन रहा है। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जब ये खुदा का बंदा, जब ये खुदा का नजीर, जब ये नन्हा यूसुफ अपने भाइयों के हाथों तशद्दुद, मार कूट, उनके हसद, उनकी कीना का शिकार हुआ, तो कलाम बयान करता है ये एक स्लेव बन गया, एक गुलाम बन गया, और ये गुलाम बनकर मिस्र के बाजारों में पहुंच गया। और मजमून मेरा क्या था? कलीसिया मेरा साथ दीजिएगा जी। खुदा आपको आज की ये स्टोरी, ये पैसेज, ये मैसेज आपके लिए एक लेसन है। जितने लोग भी मुझे लाइव देख और सुन रहे हैं, आज ये मैसेज जरूर देखिएगा। ये मैसेज आज आपके लिए बरकत और आपके लिए तरक्की का बाइस होगा। कलाम बयान करता है, पैदाइश की किताब 39 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि ये मिस्र के बाजारों में पहुंच गया। ये अपने बाप का मंजूर नजर नन्हा सा लड़का, कम सन सा नौजवान, जिसको खाना पीना अपने घर में रहना आता था, जब इसके पाँव में गुलामी की जंजीरें डाली गई तो ये मिस्र के बाजारों में पहुंचा। और कलाम बयान करता है, पोतीफार मिस्री ने इसको खरीद लिया। किसने खरीदा? पोतीफार मिस्री ने इसको खरीद लिया। और कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। मैं आज ईमानदारों आपको कहना चाहता हूं, ईमानदार अगर घर में हूं, दुआ करने वाले हूं, सुबह उठकर खुदा का कलाम पढ़ने और सोने से पहले दुआ करके, खुदा का कलाम पढ़ के, खुदा की शुक्रगुजारी करके अगर आप घर में सोते हैं, तो यकीन रखें खुदा का कलाम आपको कभी भी आफतों का सामना नहीं करने देगा। मजमून था, खुदा आपको क्या करना चाहता है। और कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। ये ईमानदार शख्स जिसको खुदा बढ़ाना चाहता था, जिसको खुदा आला ओहदे पर फाइज करना चाहता था, जिसको खुदा एक मामूली इंसान से एक खास इंसान बनाना चाहता था, जब ये यूसुफ मिस्र के बाजारों में जब ये बिका, कलाम बयान करता है, तो ये पोतीफार मिस्री के घर में चला गया। और पोतीफार मिस्री के मुतालिक कलाम बयान करता है, पैदाइश की किताब उसका 39 बाब बयान करता है, जो ही मुकद्दस यूसुफ का तलवा, जो ही मुकद्दस यूसुफ का कदम, जो ही मुकद्दस यूसुफ का शैडो परछावा ये पोतीफार मिस्री के घर में पड़ा, तो पोतीफार मिस्री ने देख लिया, यूसुफ अगर बाजार की तरफ जाता है, यूसुफ अगर पहलियों की तरफ जाता है, यूसुफ अगर खेतों की तरफ जाता है, यूसुफ अगर फसलों की तरफ जाता है, 39 बाब के अंदर लिखा हुआ है, पोतीफार मिस्री ने देख लिया खुदावंद यूसुफ के साथ है, क्योंकि उसके घर में बरकतें आना शुरू हो गई थी। अगर आपके घर में भी कोई एक बच्चा, एक बेटी, एक नौजवान अगर आपके घर में, अगर आपकी दादी अम्मी, नानी अम्मी, अब्बू अम्मी, फुप्पो, खाला कोई भी दुआ करने वाली है, तो याद रखें एक बंदे के वसीला से ही घर बरकतों से भर जाता है। और पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये पोतीफार मिस्री बुतों को मानने वाला, बुतों के आगे चढ़ावे चढ़ाने वाला, बुतों को सजदा करने वाला, बुतों के आगे झुकने वाला, इस गैर ईमानदार ने, गैर मबूदों के आगे झुकने वाले शख्स ने भी गवाही दी खुदावंद यूसुफ के साथ है। और आज वही खुदावंद आपके साथ है। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं देख रहा था कि पैलियों के अंदर, खेतों के अंदर किसान लाभ लगा रहे हैं, मूंजी लगा रहे हैं, लाभ की पनीरी बो रहे हैं। और मैंने बड़े गौर से एक बात को बड़े ध्यान से देखा,
मेरा खुद भी ताल्लुक एक गांव से है, तो मैंने देखा कि किसान जो वो पनीरी का एक जुट होता या वो जो पनीरी का छोटा सा टुकड़ा होता उसको लेता, उसका एक तिनका उसमें से निकालता और जमीन के अंदर बोता, एक तिनका लेता जमीन के अंदर बोता, एक तिनका लेता और जमीन के अंदर बोता। तो मैंने उस बात से ये नतीजा अखज़ किया, जो दूसरों को बढ़ाते हैं खुदा उन्हें मनों टनों के हिसाब से फसलें देता है। कितनी फसलें देता है? मनों के हिसाब से, ट्रालियों के हिसाब से। मैं देख रहा था वो तिनका तो एक बोया जाता है, वो पनीरी का एक छोटा सा पीस, एक छोटी सी मुठ जो होती है वो जमीन के अंदर बोई जाती है, लेकिन जब उसके फसल आती है, जब उसका नतीजा आता है तो ट्रालियों के हिसाब से वो दाने और फसल और बरकतें मिलती हैं। ईमानदारों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो याद रखें, आप बेजा किसी पर तनकीद ना करें, किसी की मुखालफत ना करें। मैंने देखा है जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग सरफराज होते हैं, जो लोग तरक्की करते हैं, हमेशा कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है उन्होंने पहले दूसरों को बढ़ाया हुआ होता है। और यही हाल, यही मिसाल मैं सीनियर पास्टर फजल की, पास्टर निदा की, पास्टर शौकत, पास्टर मुनव्वर और पूरी आइजक टेलीविजन की टीम और पूरी मिनिस्ट्री और फजल फैमिली की दूंगा। कलाम बयान करता है, खुदा जो खुदा के खादमों की वो उनकी लाइट कूलिंग करते हैं, जो उनको तंग करते हैं, वो बढ़ते नहीं है, वो घटते हैं। कलाम के अंदर गिनती की किताब 16 बाब के अंदर हमें एक बड़ा खूबसूरत वाकया पढ़ने को मिलता है। यहां पर लिखा हुआ है, जब खुदा के बंदा मूसा और हारून खुदा के जमात, खुदा के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी लीडरशिप कर रहे थे, तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है वही लोग, वही खानदान, वही जमात जिन्होंने देखा कि कैसे खुदा ने उनके लिए अजीब और बड़े बड़े काम किए हैं, इन लोगों ने खुदा के खादमों की मुखालफत करना शुरू की। मूसा और हारून की मुखालफत दातन, अबीरम और कोरा ने की। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने खुद को बड़ा बनाया। कहने लगे, गिनती की किताब 16 बाब, अगर आप नोट कर रहे हैं जरूर नोट कीजिएगा, ये हवाला जरूर पढ़िएगा। जो खुदा के लोगों की, खुदा के खादमों की मुखालफत करते हैं, कैसे खुदा उनको बदला देता है, कैसे खुदा उनको सफा हस्ती से मिटा देता है। गिनती की किताब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात हमें पढ़ने सुनने को मिलती है। दातन, अबीराम और कोरा ने मिलकर मूसा और खुदा के बंदा हारून की मुखालफत की और कहा, पहले तो तुम हमें मिस्र से निकाल लाए और तुम्हारे साथ दावा था, वादा था कि हम आपको एक ऐसे मुल्क में लेकर जाएंगे जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन यहां पर तो बंजर है, वीराना है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और किताब मुकद्दस बयान करती है, किताब मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने मूसा और हारून की मुखालफत करना शुरू की। और बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरत बात बयान करती है कि इन्होंने, दातन, अबीरम और कोरा ने अपने साथ 250 इसराइली नौजवान जमात और कलीसिया के जमात के मशहूर और चीदा सरदारों को भी अपने साथ मिला लिया और ये एक बड़ी जमात बन गई जिन्होंने मूसा और खुदा के बंदा हारून की मुखालफत की। तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है मूसा ने इनको पहले बातचीत के जरिए मनवाना चाहा। तो बाइबल बयान करती है मूसा ने अपने साथ बुजुर्ग लिए, मूसा ने अपने साथ समझदार लोग लिए, मूसा ने अपने साथ दुआ करने वाले लोग लिए, मूसा ने अपने साथ उनको लिया जो जिंदा खुदा की इबादत करते और सिर्फ उसी के सामने झुकते थे। और कलाम बयान करता है, जब ये सरदार, जब ये जमात मूसा के साथ अपने नाराज भाइयों के पास गई, अपने भाइयों को मनाने के लिए गई, उनको सुलह करने के लिए गई, तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है
इन्होंने उनकी खूब मुखालफत की और इन्हें कहा, एक तो आप हमें मिस्र से ले आए हो और ऊपर से अब तुम हमारे ऊपर सरदार भी बन गए हो, यहाँ भूख में वीराने में तुम हमें मारने के लिए लेकर आए हो। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, खुदा के बंदा का दिल टूटा, उसने दुआ की, उसने खुदा से फरियाद की, उसने खुदा के आगे आजिज़ी को इख्तियार किया, इनकसारी को इख्तियार किया। और कलाम बयान करता है, मूसा ने एक दुआ की, खुदावन अगर तू सच्चा खुदा है, अगर तू मेरा रहनुमा है, तो मैं चाहता हूं इनको ऊपर ऐसा अपना करिश्मा दिखा दे जो दुनिया की तारीख में याद रखा जाए। और लिखा हुआ है, दातन, अबीराम और कोरा ने खुदा के बंदा की मुखालफत की और मूसा की मुखालफत की, इन्होंने हारून की मुखालफत की। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, खुदा दातन, अबीराम, कोरा को भी बढ़ाना चाहता था। खुदा उन 250 अफराद को जो दातन, अबीराम, कोरा के साथ मिल गए थे, उनको भी वादे की सरजमीन में लेकर जाना चाहता था। खुदा उन्हें भी बढ़ाना चाहता था। खुदा दातन, अबीराम और कोरा के साथ जो इसराइल के मशहूर सरदार और चीदा और नुमाया शख्सियात थी, उनको भी वादे की सरजमीन में लेकर दाखिल होना चाहता था, लेकर जाना चाहता था। लेकिन कलाम के अंदर लिखा हुआ है, इन्होंने नालायक हरकतें की, इन्होंने खुदा के खादमों के खिलाफ कदम उठाया। और गिनती की किताब 16 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि इन लोगों ने जब खुदा की और खुदा के खादमों की मुखालफत की, तो गिनती की किताब 16 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि जमीन फटी और दातन, अबीराम और कोरा और उसके खानदान, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके माल, उसके मवेशी, जो कुछ भी उनका था, जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और वो जीते जी ही जमीन के अंदर समा गए और ऊपर से जमीन दोबारा मिल गई। क्या खुदा ने दातन और अबीराम, कोरा को बढ़ाया? कभी भी आप किसी की मुखालफत ना करें, कभी भी आप किसी के खिलाफ प्लानिंग ना करें। जो प्लानिंग करते हैं, मंसूबे बांधते हैं, जो लोग तरकीब बांधते हैं, मैं देखता हूं दानियल के खिलाफ भी दुआ करने और जिंदा खुदा के सामने झुकने की वजह से मुखालफत की गई। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, वक्ती तौर पर दानियल पर परेशानी आई। क्या हुआ? वक्ती तौर पर दानियल पर परेशानी आई, शेरों की मांद में चला गया। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, जो ही ये खुदा का नजीर, ये खुदा का बंदा जो ही शेरों की मांद के अंदर गया, तो जिंदा खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को बढ़ाया। उस कौम, उस मुल्क, उस कबीला के अंदर जो गैर मबूदों को मानते थे, खुदा ने उनके सामने दानियल की इज्जत को बढ़ाया, दानियल के मुकाम को बढ़ाया, दानियल के मुनसब को बढ़ाया, दानियल की इज्जत को बढ़ाया। फिर इसी तरह एक और थी नौजवान, सदरक, मीसक और अबदनजू, ये भी हसद की भीड़ चढ़े, ये भी मुखालफत इनकी की गई, इनके खिलाफ भी एक गंदा मंसूबा बांधा गया। और कलाम बयान करता है, ये भी बेचारे वक्ती तौर पर उन हासदों की प्लानिंग और स्कीम का शिकार हुए। लेकिन याद रखें, आपके माँ, आपके बाप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपके साथ 24 घंटे रहने वाले तो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप खुदा के बेटे यस्सु के लहू में आप भीग चुके हैं, डिप हो चुके हैं, सारी दुनिया आपको छोड़ दे, जिंदा खुदा कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। और यही मौत सदरक, मीसक और अबदनजू के साथ हुई। मजमून मेरा क्या था जी? खुदा क्या करना चाहता है? अपने दिल पे हाथ रखे, कहें खुदा मुझे बढ़ाना चाहता है, खुदा मुझे बढ़ाना चाहता है। सदरक, मीसक और अबदनजू को भी, ये भी एक साजिश का शिकार हुए, इन पे भी मुसीबत आई। खुदा, मैंने देखता हूं, मैं कलाम में से निचोड़ निकाला है, खुदा जब ईमानदार को बढ़ाता है, जब ईमानदार को तरक्की देता है, सरफराजी देता है, तो उनको गड़े में भी जाना पड़ता है।
यूसुफ घड़े के अंदर गया, दानियल घड़े के अंदर गया, सिद्रक मीसक और अबदनजू भी घड़े में फेंके गए। जलती हुई आग की भट्टी में यह जिंदा खुदा को मानने वाले डाल दिए गए। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, वो बादशाह, वो वक्त का हाकिम जिसने हुक्म दिया था कि आग को 7 गुना और ज्यादा तेज कर दिया जाए, उसी ने अपनी आंखों से, अपनी जीती जागती आंखों से देखा कि मैंने आग में तो 3 फेंके थे, लेकिन ये अलाजाद की सूरत वाला चौथा कौन शख्स है? और मैं अलाजाद की तफसीर यूं बयान करता हूं। अला का मतलब अरबी जुबान का लफ्ज अल्लाह है, ज़ादे का मतलब बेटा, यानी ये बयान हुआ खुदा का बेटा यसु, खुदा का बेटा यसु। ये 3 लोग भी हसद की वजह से आग की जलती हुई भट्टी का शिकार हुए, लेकिन कलाम बयान करता है जिंदा यहोवा ने, जिंदा खुदा के बेटे ने, जिंदा खुदा ने आग में उतरकर अपने बंदों को बचा लिया। इसलिए ईमानदारों, आप भी अपना दिल छोटा ना करें। आप भी किसी साजिश के खिलाफ, अगर आपके खिलाफ हो तो कलाम बयान करता है, ईमानदारों के मुतालिक लिखता है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। ईमानदारों, अगर आपके खिलाफ कोई जादू टूना, ब्लैक मैजिक, दम किया हुआ पानी और आपके खिलाफ इब्लीस अपने मुवक्किलों को भेजकर आपके अलमारियों में से कपड़े काट देता है, आपके कपड़े, वहां पर मैं जाता हूं दुआ के लिए, प्रोग्रामों के लिए, तो मैं देखता हूं बहुत ज्यादा कलीसिया, माएँ, बेटियां, बहनें, खानदान आते हैं, पर सब दुआ करो जी, नवे कपड़े अलमारी च रखे सन, पता नहीं की वजह, कैंची अंगू कटे ने, या मैं कपड़े वेखे थे सारे खून ना डूबे हुए हैं। याद रखें, कलाम ईमानदारों के साथ वादा करता है। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। वो कहता है कोई हथियार, कोई जादू, कोई टूणा, कोई मैजिक, कोई भी ऐसा घिनौना अमल अगर आपके खिलाफ इब्लीस ने, उसके प्लानरों ने, उसके मानने वालों ने गढ़ा हुआ है, तो जिंदा खुदा का बेटा आपको आग की जलती हुई भट्टी में भी उतर कर बचाने की कुदरत रखता है। वो शेरों के मुंह बंद कर देता है। और कलाम के अंदर लिखा है, मैं बात कर रहा था खुदा आपको क्या करना चाहता है, और मिस्र के अंदर कलाम बयान करता है ये अकेला ही यूसुफ गया, और जब ये अकेला यूसुफ गया तो खुदा इसको एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था, खुदा इसको सरफराज करना चाहता था, खुदा इसको एक आला मुनसब पे खड़ा करना चाहता था। और कलाम बयान करता है ये मुसीबतों का मारा हुआ शख्स गुलामी का तोक भी पड़ गया। पोतीफर मिस्री ने भी इकरार कर लिया कि खुदा यूसुफ के साथ है, लेकिन इसी ईमानदार, कभी कभी ईमानदार घबरा जाते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो ईमानदार गिला करते हैं, पादरी साहब मैंने तो आपको दायक भी दी थी, चंदा भी दिया था, वक्त पर मैं खुदा का हिस्सा भी डाल देती हूँ, भेज देता हूँ, लेकिन ये मुसीबत मुझ पे क्यों आई? सीखिए, जब खुदा किसी को बढ़ाता है तो वो उसको मुश्किलात के एक बड़े गहरे और तारीक मरहले से भी गुजारता है। यूसुफ को भी खुदा ने गुजारा, पहले भाइयों ने मारा, आज भी मैं देखता हूँ कलाम कहता है आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग होंगे, और घर के लोगों ने यूसुफ को मारा, पीटा, बेच दिया, ये गुलाम बन गया, और भाइयों ने छोड़ दिया, बाप का घर पीछे रह गया, बाप का मुल्क पीछे रह गया, अपने खानदान के लोग बड़ी दूर रह गए। तो कलाम बयान करता है, बाइबल बयान करती है, सारे यूसुफ को छोड़ गए, अकेला ही यूसुफ था, लेकिन उसके साथ उसका जिंदा खुदा था। कौन था? क्या यूसुफ के साथ जब ये मिस्र में गुलाम बनकर आया, इसका बाप था, इसकी माँ थी, इसके भाई थे, इसके खानदान के लोग थे, इसके जितने भी उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग थे, ये अकेला ही मिस्र के अंदर आया। और कलाम बयान करता है ये मुसीबतों में मारा गया, जकड़ा गया, आजमाइशों में आ गया। पोतीफर मिस्री के घर में भी आया तो वहां पर भी इसके इल्जाम लगा, बदकार औरत ने इसको पकड़ना चाहा, इसने मेरे साथ बदी किया है। उस इल्जाम की पादाश में कलाम बयान करता है ये बेचारा जेल खाने भी चला गया। और वहां पर मैं कभी कभी सोचता जब इसको जेल के अंदर लेकर गए होंगे तो यकीनन सिपाहियों ने, यकीनन पुलिस ने, यकीनन फोर्स ने इसे
तशद्दुद भी किया होगा, मारा कूटा भी होगा, इसकी इंसल्ट भी की होगी, लेकिन कलाम ये भी बयान करता है यूसुफ ने तमाम आजमाइशों को बड़ी सब्र और हिम्मत के साथ पूरा किया। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल बयान करती है कि ये शख्स कैद खाना में भी चला गया, परेशानी में चला गया, आजमाइश में चला गया, लेकिन जिंदा खुदा ने इसे ना छोड़ा। और वहां पर भी दो बादशाही कैदी, जो बादशाह के कैदी थे, आला ओहदों पे फाइज थे, जब यूसुफ ने उनकी ख्वाबों का बयान, उनकी ताबीर उनको बताई, उसने कहा एक साकी और एक नानपस था। तो कलाम के मुताबिक बाइबल बयान करती है यूसुफ ने जब उनको उनके आने वाले हालात, उनके आने वाली जिंदगी के मुतालिक बताया, तो कलाम के अंदर लिखा हुआ वो वैसे ही तुर्की बेतुर्की जिस तरह यूसुफ ने कहा था वैसे ही हुआ। एक सरदार दोबारा अपनी ओहदे, अपनी नौकरी पर बहाल हो गया, और कलाम बयान करता है दूसरा मौत की आगोश में चला गया। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है इसी तरह जब जो बादशाह के आला ओहदे पर फाइज हुआ था, उसको यूसुफ ने एक दरख्वास्त की, जब तू अपने आला ओहदे पर फाइज हो, जब तू दोबारा अपने जॉब पर, जब तू दोबारा तेरे पास इख्तियार आए तो मुझे भी याद रखना। लेकिन ये सरदार भूल गया। और मिस्र के बादशाह फिरौन को एक ख्वाब आया, और फिरौन ने अपने तमाम जादूगरों को, अपने तमाम जितने भी सलाहकार थे, जितने भी उसकी ममलकत, उसकी सल्तनत के अंदर जितने भी ज़हीन फतीन लोग थे, उनको कहा मैंने एक ख्वाब देखा है, आप मुझे उसकी ताबीर बताइए। लेकिन सारे नाकाम थे, सारे फेल हो चुके थे, सारे डेड हो चुके थे। लेकिन उसी साकी ने जो यूसुफ के ताबीर के मुताबिक आज़ाद हो चुका था, उसने अपने फिरौन को, बादशाह को एक पैगाम दिया, ऐ बादशाह तेरी ममलकत और तेरी सल्तनत के अंदर एक ऐसा बंदा है जो इन तमाम ख्वाबों की ताबीर बता सकता है। और मुख्तसर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यूसुफ ने जब फिरौन की ख्वाबों का तमाम लुब्बे लबाब, तमाम अहवाल, आने वाले कल का हाल उसे बताया, तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है जो यूसुफ घर से भाइयों से मार खा के आया था, कुट खा के आया सी, गुलाम बन के आया सी, खुदा का कलाम बयान करता है यूसुफ उसी मुल्क के अंदर, उसी कौम के अंदर, उसी नस्ल के अंदर, उसी कबीले के अंदर और उसी सल्तनत के अंदर दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। ये गुलाम शख्स एक आम शख्स से बढ़कर एक आला ओहदे का बादशाह बन गया। आज खुदा भी आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आपके पास घर नहीं है, खुदा आपको घर देना चाहता है। आप बे औलाद हैं, औलाद की उम्मीद लेकर बुद्ध मीटिंग में, संडे सर्विस में आए हैं, या इस वक्त आप इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री और आइज़र टेलीविजन के ज़रिए तमाम होने वाली इस बुद्ध मीटिंग को वाच कर रहे हैं, तो याद रखें आज का दिन आपके लिए बरकत का दिन है, आज का दिन आपके लिए ब्लेसिंग का दिन है, आज का दिन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का दिन है। हासिल कलाम यही है कि खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आप पे मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां आई हैं तो दिल छोटा ना करें, आप शिकस्त को तस्लीम ना करें, बल्कि आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, घुटने टेकें, खुदा से दुआ मांगें, और आप भी देखिएगा जिस तरह यूसुफ एक आम शख्स से, एक गुलाम से एक बादशाह बन गया, खुदा आपको भी उसी तरह बड़ी बड़ी बरकतें देकर बहाल करेगा और आप भी यहाँ पर आकर गवाहियाँ देंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूँ आज मेरा मैसेज क्या था, खुदा आपको, आमीन, यकीनन ये बरकत, ये ब्लेसिंग खुदावंद इसराइल का खुदा, बुजुर्ग इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, यकूब का खुदा आपको बख्शे। आमीन। आमीन।